آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ زچگی کے دوران ہونے والی بچوں کی اموات کی شرح پر قابو پانے کے لیے حاملہ خواتین کی ڈیلیوری دواخانے میں کروانے کو یقینی بنانے کے لیے چلائی جائے بیداری مہم۔ ویمنس اینڈ چائلڈ ویلفیئر منسٹر آدیتی تٹکرے نے دی متعلقہ افسران کو ہدایت۔ متعلقہ شہریان جلد از جلد اپنی غیر قانونی تعمیرات کو گنٹھے واری قوانین کے تحت ریگولرائز کروا لیں، میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی اپیل۔ متعلقین کو نوٹسز جاری کرنے کی میونسپل کمشنر نے دی افسران کو ہدایت۔ یکساں پانی فراہمی قرارداد کے مطابق جائکواڑی ڈیم کے لیے فوری چھوڑا جائے حق کا 20 TMC پانی۔ تعلقہ پیٹرن کو قحط زدہ قرار دینے کا بھارت راشٹریہ کمیٹی نے حکومت سے کیا مطالبہ۔ اور ریت سے لدا ٹریکٹر پلٹ جانے کے بعد ٹریکٹر کے نیچے دب کر ڈرائیور جاں بحق۔ سڑکو مہانگر کے وڑگاؤں کولہاٹی میں پیش آیا یہ المناک حادثہ۔ سڑک میں موجود گڑھا بنا حادثے کی وجہ۔ خبریں تفصیل سے۔ زچگی کے دوران ہونے والی بچوں کی اموات کی شرح کو کم کرنے کے لیے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ حاملہ خواتین کی ڈیلیوری دواخانوں میں ہی ہو۔ یہ ہدایت ویمنس اینڈ چائلڈ ویلفیئر منسٹر آدیتی تٹکرے نے متعلقہ افسران کو دی۔ واضح رہے کہ ویمنس اینڈ چائلڈ ویلفیئر منسٹر آدیتی تٹکرے اورنگ آباد دورے پر آئی ہوئی تھیں۔ اس موقع پر انہوں نے ویمنس اینڈ چائلڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی علاقائی جائزہ میٹنگ ضلع کلکٹر آفس کے میٹنگ ہال میں طلب کی۔ اس میٹنگ میں ایڈیشنل کلکٹر ڈاکٹر اروند لوکھنڈے، DCP اپرنا گیتے، ڈپٹی کمشنر ہرشدا دیشمکھ، ڈسٹرکٹ ویمنس اینڈ چائلڈ ویلفیئر آفیسر سورنا جادھو، ویمنس اینڈ چائلڈ ویلفیئر پروجیکٹ کی نندا گائیکواڑ، سول سرجن ڈاکٹر دیانند موتی بوڑے اور متعلقہ افسران شریک تھے۔ ڈپٹی کمشنر ہرشدا دیشمکھ نے ویمنس اینڈ چائلڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیمات کی تفصیلات سے وزیر موصوف کو واقف کروایا۔ تمام تفصیلات جاننے کے بعد ریاستی وزیر نے ہدایت دی کہ زچگی کے دوران ہونے والی بچوں کی اموات کی شرح کو کم کرنے کے لیے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہر حاملہ خاتون کی زچگی دواخانے میں ہی ہو۔ اس کے لیے خصوصی بیداری مہم چلانے کا بھی انہوں نے متعلقہ افسران کو مشورہ دیا۔ اس کے علاوہ خواتین و اطفال کی بہبودی کے لیے ٹھوس قدم اٹھانے کی بھی ہدایت انہوں نے متعلقہ افسران کو دی۔ گنٹھے واری علاقوں میں موجود پراپرٹیز کو ریگولرائز کروانے کے لیے متعلقین کو نوٹسز جاری کی جائیں۔ یہ ہدایت میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے سبھی زونل آفیسرز اور گنٹھے واری سیل کے افسران کو دی۔ واضح رہے کہ ریاستی حکومت نے گزشتہ دنوں سال 2020 تک کی غیر قانونی تعمیرات کو قانونی شکل دینے کی غرض سے گنٹھے واری قانون میں ترمیم کی، جس کے بعد AMC انتظامیہ نے ایسی تعمیرات کو ریگولرائز کرنے کی غرض سے خصوصی گنٹھے واری سیل بھی قائم کیا اور شہریان سے اپیل کی کہ وہ اپنی غیر قانونی تعمیرات کو گنٹھے واری قانون کے تحت ریگولرائز کروا لے۔ اس وقت انتظامیہ نے گنٹھے واری کی فیس میں 1500 اسکوائر فٹ تک کی تعمیرات کو 50% چھوٹ دی تھی، جس کے بعد انتظامیہ کو 10,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئی تھیں، جس سے میونسپل کارپوریشن کی تجوری میں 125 کروڑ روپے جمع ہوئے، مگر بعد میں انتظامیہ نے گنٹھے واری فیس میں دی جانے والی رعایت مرحلہ وار ختم کر دی، جس کی وجہ سے شہریان نے اپنی غیر قانونی تعمیرات کو ریگولرائز کروانے کے لیے دلچسپی نہیں لی۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے گنٹھے واری قانون کے تحت اب تک کیے گئے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس قانون کے تحت غیر قانونی تعمیرات کو ریگولرائز کروانے کی غرض سے ایک مرتبہ پھر سے خصوصی مہم شروع کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے سبھی زون آفیسرز اور گنٹھے واری سیل کے افسران کو بتایا کہ متعلقین کو انتظامیہ کی جانب سے نوٹسز جاری کی جائیں۔ اسی طرح مہم میں تیزی لانے اور زیادہ سے زیادہ غیر قانونی تعمیرات کو ریگولرائز کروانے کے لیے کیمپ بھی لگائے جائیں۔ اس میٹنگ میں ایڈیشنل میونسپل کمشنر رنجیت پاٹل، سوربھ جوشی، ڈپٹی کمشنر اپرنا تھیٹے، سبھی زون کے اسسٹنٹ کمشنرز اور گنٹھے واری سیل کے افسران بھی موجود تھے۔ یکساں پانی فراہمی قرارداد کے مطابق جائکواڑی ڈیم کے لیے 20 TMC پانی فوری چھوڑا جائے۔ یہ مطالبہ راشٹر بھارت کمیٹی کے ذمہ داران نے حکومت سے کیا ہے۔ اس ضمن میں ایک میمورنڈم
पैठन के तहसीलदार के सुपुर्द किया गया। भारत राष्ट्र कमेटी के कोऑर्डिनेटर व शेतकरी संगठन के कायद कैलाश तवार की क़यादत में एक वफ़द ने तहसीलदार से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसके ज़रिए मुतालबा किया गया कि जायकवाड़ी डैम में हक़ का 20 टीएमसी पानी फौरी छोड़ा जाए। इसी तरह तालुका पैठन के ब्रह्म गांव के इरिगेशन प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का काम फौरी शुरू करवाया जाए। उन लोगों का कहना है कि बारिश न होने के सबब कहत जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है, लिहाजा तालुका पैठन को फौरी कहत ज़दा ज़ाहिर किया जाए। इसके अलावा गुज़िश्ता बरस हुई तूफ़ानी बरसात के सबब किसानों को हुए नुकसानात की भरपाई भी मुतासरीन के बैंक अकाउंट में जमा करवाई जाए। इस वफ़द में भारत राष्ट्र कमेटी के कोऑर्डिनेटर कैलाश तवार, मछेंद्र गुंड, अशोक रावस उर्फ ठाकरे, राजू निवारे, शिवाजी सोनोने, केपी खरब, रशीद मौलाना और किसान बड़ी तादाद में शामिल थे। कैलाश तवार, भारत राष्ट्र समिती पैठण तालुका समन्वयक। आज पैठण तहसीलदारांना मी एक निवेदन दिले आहे की जायकवाडी धरणात वरील धरणातून 20 टीएमसी पाणी सोडण्यात यावं। पैठण तालुका यावर्षी एवढा म्हणजे कमी पाऊस असताना दुष्काळी जाहीर होणं आवश्यक होतं, पण पैठण तालुक्याला दुष्काळातून वगळलेलं आहे। जे मागच्या वर्षीचं दुष्काळी अनुदान आलं ते बँकेने होल्ड लावल्यामुळे शेतकऱ्याच्या हातात पडत नाही। अशा भरपूर शेतकऱ्याच्या मागण्या आहेत आणि यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती ॲक्च्युअल आहे आणि एवढा दुष्काळ असूनही शेतीमालाला भाव नाही। सरकार एकीकडं हमी भाव जाहीर करतं पण खरेदी केंद्र उभा करत नाही, म्हणून शेतकऱ्याला नाईलाजाने बेभाव मातीमोल भावाने त्याचा माल विकावा लागतो। शेतकरी हा लावारीस झालेला आहे। कोणी राजकीय पक्ष शेतकऱ्याच्या बाबतीत संवेदनशील नाही आहे आणि सगळे पक्ष फक्त आपली खुर्ची पद कसं टिकावं ह्याच याच्यात पडलेलं आहे। शेतकऱ्याच्या प्रश्नाशी कोणालाही घेणं देणं नाही आहे, म्हणून आज पैठण तालुक्याच्या शेतकऱ्याच्या वतीने आम्ही पैठण तहसीलला निवेदन दिलेलं आहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के 19वें इंद्रधनुष्य यूथ फेस्टिवल प्रोग्राम में रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर वो यूनिवर्सिटी के चांसलर रमेश बैस भी शरीक रहेंगे। ये इत्तला यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से मौसूल इत्तला के मुताबिक 19वां इंद्रधनुष्य इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल आइंदा 5 से 9 नवंबर के दरमियान मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें 24 यूनिवर्सिटीज़ के 1080 फ़नकार हिस्सा लेंगे जो 29 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश करेंगे। इस ज़िमन में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने गुज़िश्ता रोज़ रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर व यूनिवर्सिटी के चांसलर रमेश बैस से मुलाकात की और इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए उनसे दरख्वास्त की, लिहाजा वाइस चांसलर प्रमोद येवले ने उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर रजिस्ट्रार डॉक्टर भगवान साखड़े भी उनके हमराह मौजूद थे। देवगांव रंगारी के रूरल अस्पताल में आयुष्मान भव हेल्थ स्कीम के तहत एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया, जिसका इफ्तिताह गांव की सरपंच और अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट के हाथों अमल में आया। नाजरीन, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुल्क की आवाम को तिब्बी सहूलतें फ़राहम करवाने की गर्ज से आयुष्मान भव हेल्थ स्कीम शुरू की गई है, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता 13 सितंबर को सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के हाथों ऑनलाइन किया गया था। इस स्कीम के तहत देवगांव रंगारी के रूरल अस्पताल में एक मेडिकल कैंप आज रखा गया, जिसका इफ्तिताह गांव की सरपंच कांताबाई गोरे और अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजया सोनोने के हाथों किया गया। इस मौके पर रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रशांत बड़े भी मौजूद थे। इस कैंप में देवगांव रंगारी के अलावा सर्कल के साकिनान, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और ज़ईफ़ अफराद शामिल थे, उनका मेडिकल चेकअप किया गया और उन्हें मुफीद मशवरे दिए गए। इसी तरह उनमें दवाएं भी मुफ्त तक़सीम की गईं। इस मौके पर सरपंच कांताबाई गोरे, नायब सरपंच रुबीना आसिफ खान पठान, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजया सोनोने, डॉक्टर इमाद ख्वाजा, डॉक्टर पूजा कलिये, डॉक्टर तेजस पाटिल, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रोहित जैन, डॉक्टर शगुफ्ता शेख, डॉक्टर दहीवाल, डॉक्टर गायके, डॉक्टर गिरी, अरुण बचके, नितिन मोरे, सतीश राठौड़, आसिफ खान पठान, एजाज खाजी और सहाफ़ी मुजीब सैयद के अलावा दीगर अफराद बड़ी तादाद में मौजूद थे। दो शिव सैनिकों के दरमियान झगड़ा न होने पाए, इस गर्ज से उद्धव ग्रुप को एक दिन कबल ही रावण दहन करने को कहा गया है। ये वजाहती बयान एमएलए संजय शिरसाट ने दिया है। वाज़ेह है कि रावण दहन के मामले पर कांग्रेस और हुकूमत आमने सामने दिखाई दे रही है।
शिंदे ग्रुप का दशहरा जलसा आज़ाद मैदान पर रखा गया है। इस मैदान पर हर साल रामलीला होती है और दशहरे के दिन रावण का दहन किया जाता है, लेकिन शिंदे ग्रुप का वहां दशहरा इजलास होने के सबब रियासती हुकूमत ने एक फरमान जारी किया है, जिसके ज़रिए कहा गया है कि दशहरे से एक दिन कबल ही रावण दहन कर लिया जाए। हुकूमत के इस फैसले पर कांग्रेस ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए एक छुपता हुआ सवाल सरकार से किया कि क्या उन्हें सिर्फ वोटों के लिए ही प्रभु राम चाहिए, जिस पर शिंदे ग्रुप के एमएलए संजय शिरसाट ने क्या सफाई दी। आइए देखते हैं खुद शिरसाट की जबानी। दसरा मेळावा हा ठरल्याप्रमाणे आणि दरवर्षाप्रमाणे शिवाजी पार्कवर होणार होता, परंतु दोन गटामध्ये किंवा दोन शिवसैनिकांमध्ये आपसामध्ये भांडण नको म्हणून माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी आझाद मैदानाची निवड केलेली आहे। तुमच्या मार्फत जी काही बातमी आलेली की त्या ठिकाणी त्यांना एक दिवस अगोदर रावण दहन करायला लावलंय, जर लावलं जरी असेल तरी शिंदे साहेबांनी त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतरच निर्णय घेतला असेल। परंतु काही लोकांना आता आज मध्ये काँग्रेसवाल्याला सुद्धा आजकाल रामाबद्दलचा आपुलकीचा लळा आज त्यांच्यातून दिसतोय आणि आम्ही याला विरोध करू। मला वाटतं रामाने त्यांना दिलेली ही सद्बुद्धी आहे। राहिला प्रश्न संजय राऊतचा, तर त्याला टीका केल्याशिवाय त्याला जेवणच गोड जात नाही किंवा जेवण केल्या जात नाही। त्याने असं म्हणलंय की वाल्याचा वाल्मिकी आता नवीन रामायण लिहायला घेतो। ज्या ठिकाणी त्याने वाल्याची भूमिका बजावली असं जर तुम्हाला म्हणायचं असेल तर मग तुम्ही ती डायरेक्ट टीका ही शिवसेना प्रमुखावर करताय। शिवसेना प्रमुखाच्या तालमीत वाढलेले एकनाथ शिंदे त्या टायमाला जर तुम्हाला ते वाल्या कोळी वाटत असतील तर शिवसैनिक तुम्हाला माफ करणार नाही। आणि आजची जी काही तुमची जी काही उठावा गटाची जे लोक आहेत त्या कोणत्या भूमिकेत हे सर्व जगाला माहिती। म्हणून रावणाचं दहन एक दिवस अगोदर झालं का 365 दिवस जरी झालं तरी त्यावर वादंग माजवण्याचं काही कारण नव्हतं, परंतु बुद्धिभ्रष्ट झालेल्या लोकांकडून असे स्टेटमेंट येणं अपेक्षित आहे। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पार्टी के रियासती सदर व एमपी इम्तियाज़ जलील ने पार्टी के ख़वातीन इकाई के ज़िला सदर ओहदे की ज़िम्मेदारी मारूफ सोशल वर्कर व साबिक़ कारपोरेटर फिरदौस फातिमा को सौंपी है। इस ज़िमन में उन्हें नामज़दगी लेटर दिया गया। वाज़ेह है कि एमआईएम को मुस्तहकम बनाने और आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए पार्टी के रियासती सदर व रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने ख़वातीन इकाई को मजबूत बनाने का फ़ैसला किया। उसके बाद उन्होंने पिंपरी चिंचौड़ की रूहीनाज शकील शेख को ख़वातीन इकाई की कारगुजार रियासती सदर के ओहदे पर नामज़द किया। इसी तरह ख़वातीन इकाई के औरंगाबाद ज़िला सदर की ज़िम्मेदारी फ़आल सोशल वर्कर व साबिक़ कारपोरेटर फिरदौस फातिमा रमज़ानी ख़ान के सुपुर्द की। इस ज़िमन में दोनों ही ओहदेदारान को इम्तियाज़ जलील ने नामज़दगी लेटर्स दिए। एमआईएम की ख़वातीन इकाई के ज़िला सदर ओहदे की ज़िम्मेदारी दिए जाने पर फिरदौस फातिमा रमज़ानी ख़ान ने एमपी इम्तियाज़ जलील का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें ये यकीन दिलाया कि पार्टी ने उन पर जो एतमाद किया है और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है उसे वो पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी। आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए मुझे चुना गया। सबसे पहले मैं खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और साथ ही मेरी बहन रूहीनाज शेख का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमारी स्टेट प्रेसिडेंट है। और ये यकीन दिलाती हूँ कि आज का जो दौर है, आज की आधी आबादी महिलाओं की है, तो आज महिलाओं का आगे आना भी बहुत ज़रूरी है। देखा जाता है, कहा जाता है कि एक मर्द पड़ा, एक फ़र्द पड़ा, एक औरत पड़ी, पूरा ख़ानदान पड़ा। कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी औरतों का इस मैदान में आकर काम करना बहुत ज़रूरी है। और आज बार बार मोदी जी भी बात करते हैं कि महिलाओं के डेवलपमेंट की, महिलाओं को आगे लाने की, और जिस तरह नई संसद में पहले दिन ही महिलाओं के लिए कुछ घोषणाएँ की गई, तो हम उम्मीद करते हैं कि रूहीनाज शेख और मैं मिलकर औरंगाबाद ज़िला और पूरे महाराष्ट्र में भी महिलाओं को आगे लाने की कोशिश करेंगे और महिलाओं में बेदारी पैदा करने की कोशिश करेंगे और हमारी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। कायगांव से गंगापुर देवगांव रास्ते के तामीरी काम के लिए हुकूमत ने 57 करोड़ रुपयों का फ़ंड फराहम करवाया है, मगर मुताल्लिक़ा कॉन्ट्रैक्टर ने नाक़िस क्वालिटी का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ये सड़क जगह जगह से उधड़ गई है और लोग हादसात की ज़द पर हैं। लिहाजा इस मामले की बारीकी से जांच की जाए और कॉन्ट्रैक्टर व इंजीनियर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इस मतालबे पर
MIM के वर्कर्स ने ढोल बजाओ आंदोलन किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि कायगांव से देवगांव जाने वाले रास्ते की तामीर के लिए मुताल्लिका महकमे ने AT इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आर प्राइवेट लिमिटेड नामी एजेंसी को ठेका दे रखा है, मगर 3 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी मुताल्लिका ठेकेदार ने ये काम पूरा नहीं किया और इस दरमियान सड़क जगह जगह से उखड़ गई है, जिसकी वजह से उसमें बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं और व्हीकल सवार हादसात की जद पर हैं। इन लोगों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर MLA प्रशांत बम का रिश्तेदार होने के सबब उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि सड़क में जाबजा बने गड्ढे फौरी बंद करवाए जाएं और सड़क का तामीरी काम फौरी मुकम्मल करवाया जाए। इसी तरह इस मामले की बारीकी से जांच करके मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए। सार्वजनिक बांधकाम विभाग या ठिकाणी MIM पक्षाच्या वतीने आम्ही पुढे रस्ता रोको आंदोलन करून एक ठराव घातला। लोक मला एवढं सांगायचे का जे भ्रष्ट अधिकारी आहे या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी काही पैशासाठी रोड निष्कृष रस्ता तयार केला आणि जो ठेकेदार आहे या ठेकेदाराकडून काही पैसे घेऊन त्यांनी हा जो रस्त्याचं जे खड्डेमय झालं याला पूर्ण जबाबदार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता हे आहे। मी एवढंच म्हणणार आहे का मी ज्यावेळेस राहुल भाऊनं आम्ही ज्यावेळेस त्या ठेकेदाराला विचारलं की बाबा हा रस्ता कसा असा काय झाला, तुम्ही तर आत्ताच काम केलं, तर तो ठेकेदार आम्हाला काय उत्तर देतोय का मी आमदार साहेबाचा नातेवाईक आहे, तुम्हाला काय करायचं करून घ्या। आणि आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे जे अभियंता आहे त्यांना विचारलं तर ते म्हणे आमदार साहेबांना जी निधी आणला त्या आमदार साहेबाच्या नातेवाईकानेच हे काम केलेलं आहे, आम्ही काय करणार आहे साहेब। म्यूनसिपल तलबा की हमाजहत तरक्की हो इस गर्ज से म्यूनसिपल स्कूलों के लिए 5 आर्ट्स एंड क्राफ्ट टीचर्स और 5 स्पोर्ट्स टीचर के तकर्रुरात किए जाएं। ये हिदायत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने शोबे तालीमात के ज़िम्मेदारान को दी है। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से चार्ज संभालने के बाद ही म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने शोबे तालीमात का जायज़ा लिया और म्यूनसिपल तलबा की हमाजहत तरक्की के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स तरतीब दिए, उन्हें मौसीकी, खेल और इस जैसे दीगर सरगर्मियों के लिए तरगीब दी। उन्हें ग्लोकारी और डांस के अलावा खेलों की तरबियत देने का फ़ैसला किया, मगर इस ज़िम्मन में शोबे तालीमात के ज़िम्मेदारान ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके बाद उन्होंने अपने मकासद की तकमील के लिए म्यूनसिपल स्कूलों के लिए 5 आर्ट्स एंड क्राफ्ट टीचर्स और 5 स्पोर्ट्स टीचर्स के तकर्रुरात करने की हिदायत शोबे तालीमात के ज़िम्मेदारान को दी। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि ये असातिज़ा किसी एक स्कूल के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि रोज़ाना सभी स्कूल्स पर जाकर तलबा को तबला, हारमोनियम, सिंथेसाइज़र, कोगो, बोंगो, ढोलकी, ढोलक, गिटार, सितार, ड्रम सेट और दीगर इंस्ट्रूमेंट्स की तरबियत देंगे। इसी तरह स्पोर्ट्स टीचर भी तलबा को कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, स्विमिंग, जिम्नास्टिक और मलखम जैसे खेलों के गुर सिखाएंगे। रेत से भरा ट्रैक्टर पलट जाने के सबब उसके नीचे दब जाने से ड्राइवर की मौत हो गई। ये अलमनाक हादसा आज सुबह सिडको महानगर 1 से मुत्तसिल वड़गांव कोल्हाटी से करीब पेश आया। महलू का नाम नवनाथ विट्ठल पारशे बताया जा रहा है, जो खौड़ा झोपड़पट्टी 30 गांव का साकिन था। तफसीलात के मुताबिक 25 साला नवनाथ ट्रैक्टर में रेत भरकर सिडको गार्डन से 30 गांव जा रहा था कि वड़गांव कोल्हाटी की पानी की टांकी से करीब सड़क में मौजूद गड्ढे के सबब ट्रैक्टर पलट गया और वो ट्रैक्टर के नीचे दब गया। पास ही में मौजूद ईंट भट्टी पर काम कर रहे मजदूरों ने जब एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी तो वो लोग वहां दौड़े चले आए और ट्रैक्टर के नीचे दबे नवनाथ विट्ठल को किसी तरह बाहर निकाला, लेकिन नवनाथ के सर पर ज़ोरदार चोट लगने के सबब उसकी मौत हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही MIDC वालुज पुलिस स्टेशन के डिप्टी इंस्पेक्टर दीपक रेठे अपने अमले के साथ वहां पहुंचे और ड्राइवर को घाटी दवाखाना भिजवाया, जहां डॉक्टर्स ने तिब्बी जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। बिड़किन के SJP पेट्रोल पंप के सामने 2 टू व्हीलर गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके सबब व्हीकल सवार शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक गणेश पवार नामी नौजवान जो डिलीवरी बॉय की हैसियत से काम करता है, अपनी 2 व्हीलर गाड़ी MS-20 GB 3638 पर चीते गांव की जानिब जा रहा था कि बिड़किन से अपनी मोटरसाइकिल पर आ रहे
सांप दोस्त खलील सिद्दीकी की गाड़ी से टकरा गया। इस हादसे में गणेश और खलील दोनों ही शदीद तौर पर जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही बिड़किन पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर गणेश सुरोसे, शिवानंद बंगे, एमएन धनवे और विजय धनवे जाए हादसे पर पहुंचे और दोनों ही जख्मियों को इलाज की गर्ज से बिड़किन के रूरल हॉस्पिटल भिजवाया। दोनों ही व्हीकल सवार शदीद तौर पर जख्मी हुए थे, लिहाजा उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर मजीद इलाज के लिए घाटी अस्पताल भिजवाया गया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ज़चगी के दौरान होने वाली बच्चों की अमवात की शरह पर काबू पाने के लिए हामिला ख़वातीन की डिलीवरी दवाखाने में करवाने को यकीनी बनाने के लिए चलाई जाए बेदारी मुहिम। विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर आदिति तटकरे ने दी मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत। मुताल्लिक़ा शहरियान जल्द अज जल्द अपनी गैर कानूनी तामीरात को गुंठेवारी क़वानीन के तहत रेगुलराइज करवा लें, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की अपील। मुताल्लिक़ीन को नोटिस जारी करने की म्यूनिसिपल कमिश्नर ने दी अफसरान को हिदायत। यकसा पानी फराहमी करारदाद के मुताबिक जायकवाड़ी डैम के लिए फौरी छोड़ा जाए हक़ का 20 TMC पानी। तालुका पैठन को कहज़दा करार देने का भारत राष्ट्रीय कमेटी ने हुकूमत से किया मुतालबा। और रेत से लदा ट्रैक्टर पलट जाने के बाद ट्रैक्टर के नीचे दबकर ड्राइवर जाँ बहक। सिडको महानगर के वड़गांव कोल्हाटी में पेश आया ये अलमनाक हादसा। सड़क में मौजूद गड्ढा बना हादसे की वजह। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।